السلام علیکم. آج 5 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں عابد. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کو دیں گے اہم خبر. بورے والا میں ایک کمرے میں مبینہ طور پر گیس بھر جانے سے نوبہتہ دلہن جاں بحق ہو گئی. لڑکی کی 2 ہفتے قبل شادی ہوئی تھی. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے میاں شاہد سلیم سے. میاں شاہد، یہ کیا معاملہ ہے؟ پولیس نے کوئی تفتیش کی ہے؟ جی بالکل علی عابد، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ تھانہ سٹی کی حدود میں واقع جو نواحی رہائشی آبادی ہے سیٹلائٹ ٹاؤن وہاں پیش ہے، جہاں جو ہے کمرے میں گیس بھر جانے سے دم گھٹنے سے نوبہتی دلہن جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے، جس کی شادی عائشہ جو ہے اس کی شادی جو 2 ہفتے قبل ہوئی تھی. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس وہ موقع پر پہنچی ہے اور جو جاں بحق ہونے والی خاتون جو ہے عائشہ اسے ہسپتال منتقل کیا گیا اور ابتدائی طور پر ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد اسے جو ہے تدفین کی اجازت دے دی گئی ہے. اور ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ گیس ہیٹر چل رہا تھا لیکن وہ آن رہ جانے کی وجہ سے جو کمرے میں گیس بھر گئی اور وہ جو ہے عائشہ کے جاں بحق ہونے کی جو ہے وہ وجہ بنی ہے. اور عائشہ کے جاں بحق ہونے پر پورا جو اہل خانہ ہے وہ غم سے نڈھال ہے. جی بہت شکریہ میاں شاہد آپ کا. ٹنڈولیار میں میونسپل کمیٹی کے دفتر پر اینٹی کرپشن حکام نے سول جج کے ہمراہ چھاپا مارا اور ریکارڈ تحویل میں لے لیا. چھاپے کے وقت میونسپل کمیٹی کے افسران دفتر سے غائب ہو گئے. مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے لطیف قائم خانی سے. جی اس وقت میں جو ہے میونسپل کمیٹی ٹنڈولیار میں موجود ہوں. یہاں پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کراچی کی ہدایت پر سرکل انچارج نذیر ملک ٹنڈولیار نے جو ہے سول جج فورس کے ہمراہ جو ہے بلدیہ ٹنڈولیار پر چھاپا مارا ہے. ان کے پہنچتے ہی بلدیہ کے حملے میں جو ہے کھلبلی مچ گئی اور کئی افسران جو ہے اپنی سیٹ سے غائب ہیں. اینٹی کرپشن نے جو ہے جنرل برانچ اور اکاؤنٹ برانچ سے جو ہے تمام ریکارڈ جو ہے طلب کی ہے اور ریکارڈ کو جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ملازمین کی بھرتی کا ریکارڈ بھی جو ہے چیک کیا ہے، کتنے ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں اور کتنے جو ہے گوشت ملازمین ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ترقیاتی کاموں کی فائلیں بھی جو ہے چیک کی ہیں اور تمام فائلیں جو ہے اپنے ریکارڈ میں لے لی ہے. جی جیکب آباد میں مطالبات کے حق میں اسپیشل افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا. کہتے ہیں کہ سرکاری کوٹے پر ملازمتیں نہیں دی جا رہی، ہمارا تربیتی ادارہ اور معاوضہ بھی بند کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے غلام عباس سے. غلام عباس، کیا کہنا ہے مظاہرین کا؟ جی بالکل، جیکب آباد میں تربیتی ادارے اور وظیفہ بند کرنے کے خلاف گونگے بہرے اسپیشل افراد کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گونگے بہرے اسپیشل افراد کو تربیت دینے والے تربیتی ادارے کو بند کر کے انہیں ملنے والا ماہانہ وظیفہ بھی بند کر دیا گیا ہے. موجودہ کمر توڑ مہنگائی کے دور میں بے روزگاری کے باعث فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر ہم مجبور ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ کر انوکھا احتجاج کر رہے ہیں. حکام بالا نوٹس لے کر بند کیے گئے تربیتی اداروں کو فعال کر بند کیا گیا جو وظیفہ ہے وہ بھی فریق کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج دائرہ جو ہے وہ وسیع کر دیا جائے گا. جی بہت شکریہ غلام عباس آپ کا. اب میں کوسٹ گارڈ کے عملے نے کارروائی کر کے گاڑی سے منشیات برآمد کر لی. ایک اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا. حکام کے مطابق اعلیٰ کوالٹی کی 59 کلو منشیات سمندر کے راستے بیرون ملک منتقل کی جانی تھی. پکڑی گئی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے. گرفتار اسمگلر سے مزید تفتیش جاری ہے. ٹھٹک علاقے سجاول میں ہوٹل پر 3 گروہوں میں تصادم ہو گیا جس میں 25 افراد زخمی ہو گئے. مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے امر لال سے. امر لال، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، بس اسٹاپ سجاول میں ایک بھٹی ہوٹل گروہ میں تصادم ہو گیا جس کے بعد 25 سے زائد افراد زخمی ہو گیا ہے. ہوٹل میں بیٹھے ہوئے افراد نے ایک نوجوان نے ہوٹل سے چائے مانگی تو دیر پر ہوٹل پر دھاوا کر دیا جس کے بعد 25 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. زخمی کو سول اسپتال سجاول منتقل کر دیا گیا ہے. جھگڑے میں لٹھیاں، لاتوں مکوک اور لوہے کے لگنے سے 25 افراد جو شدید زخمی ہوئے جس کو 4 افراد جو تشدد میں کراچی ریفر کر دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سب ایک چائے کے کپ پر جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد سجاول کا جو بس اسٹاپ ہے وہ جنگ کا میدان بن گیا جس میں کافی لوگ اور بھی زخمی ہوئے ہیں جن کو بھی اسپتال ٹھٹا اور سجاول منتقل کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ امر لال. جہلم میں پولیس فاؤنڈیشن دستکاری سینٹر اثر دراز سے غیر فعال ہے. سینٹر کے اندر اور باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ.
جی بالکل، جیلم میں میجر محمد اکرم شہید کی یادگار کے قریب پولیس فاؤنڈیشن دستکاری ٹریننگ سینٹر تو قائم کیا گیا، لیکن یہ عرصہ دراز سے انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث غیر فعال ہے۔ اس سینٹر کے اندر اور باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ آنے والی بچیوں کو، شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ گندگی اور تعفن سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اتنی گندگی ہے یہاں پہ، اور بچیاں کیا اسکول میں آئیں؟ جب اتنی گندگی ہوگی یہاں پہ تو بچیاں کیسے اسکول میں آئیں گے؟ یہ ختم ہونا چاہیے یہاں پہ۔ ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا پوائنٹ بنا دے، کوئی اچھی جگہ بنا دیں یہاں پہ۔ یہ شہر کی مین شہر ہے، مین روڈ ہے، اور ادھر اتنی گندگی ہے۔ جیلم شہر کا دل ہے جہاں پر یہ پولیس فاؤنڈیشن دستکاری ٹریننگ سینٹر ہے، لیکن عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ کوڑے کرکٹ کے انبار ہیں، فلیٹ ڈپو میں یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ شہری سراپا احتجاج ہے، انہوں نے مطالبہ کیا اعلی حکام سے کہ اس دستکاری سینٹر کو فعال بنایا جائے۔ کوڑے کرکٹ کی جو ڈھیر ہیں ان کو جلد سے جلد ختم کروایا جائے۔ جی خیبر کی تحصیل باڑہ میں کرش پلانٹ کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے افغان شاہراہ فرنٹیئر روڈ کو قمر آباد کے مقام پر بند کر دیا۔ ہمارے نمائندے ذاکر آفریدی ہمیں اس حوالے سے مزید بتائیں گے۔ جی اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر افغان شاہراہ فرنٹیئر روڈ کو شمار قوم نے بند کروا دیا گیا ہے۔ یہ احتجاج 2009 سے کرش پلانٹ بند ہوا ہے، ان کی دوبارہ بحالی کے لیے یہ احتجاج جاری ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے کرش پلانٹ ان کو بحال کیا جائے، کیونکہ ان سے ہزاروں کی تعداد میں عوام کی اور یہاں کے رہائشیوں کے روزگار وابستہ ہے۔ کیونکہ یہ کرش پلانٹ 2009 میں بند کیا گیا تھا، تو اس سے لے کر اب تک ان کو دوبارہ بحال نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ جب تک یہ بحال نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ جی کرک کے علاقے چوندرا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں گریڈ اسٹیشن پر موجود آج نیوز کے نمائندے سبز علی سے۔ سبز بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں 132 kV گریڈ اسٹیشن صبر آباد میں۔ یہاں سے پورے علاقہ چونترا کو، جس کی علاقوں میں آبادی ہے، اس کو بجلی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ یہاں سے لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اسی گریڈ اسٹیشن سے، وہ 16 سے 20 گھنٹے کا طویل دورانیہ ہے، جس سے عوام کو پینے کا پانی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو گھریلو ضروریات ہیں اس میں شدید قسم کے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ 10-13 ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے جو کہ لوڈ برداشت کرنے سے قاصر ہے، اور اسی کے لیے ایک آؤٹ بریکر لگایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک نیا جو ٹرانسفارمر ہے 20-13 وہ لایا گیا ہے، تاہم تاحال اس کی تنصیب نہیں ہو سکی ہے۔ عوام علاقہ کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس نئے ٹرانسفارمر کو لگایا جائے تاکہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے۔ جی میرپور خاص میں کھلے عام بجلی کی چوری کی جانے لگی ہے۔ ہیسکو افسران نے کئی میٹرز پکڑ لیے، لیکن صارفین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، صرف میٹرز کو تبدیل کر دیا گیا۔ مزید بتائیں گے محمد صدیق۔ میرپور خاص ہیرآباد سب ڈویژن میں بجلی چوری کرنا ہوا نہایت آسان۔ بجلی کا میٹر ڈیجیٹل ہو یا مینول، آپ اپنے میٹر میں سوراخ کریں یا ریپے کروا کر بجلی چرائیں، کیونکہ ہیسکو عملے نے سیکورنگ کے دوران آپ کا میٹر اتارنا ضرور ہے، لیکن نقص شدہ ہونے کے باوجود میٹر تبدیل کرنے کے بجائے دوبارہ لگا دینا ہے، اور آپ کو مزید بجلی چوری کرنے کی مہلت بھی دینی ہے۔ اور کیوں دینی ہے یہ نہ پوچھیں، یہ نیپرا اور چیئرمین بھی جانتے ہیں۔ بولے ایس ڈی او صاحب سے آپ کو بات کرنی پڑی۔ صارفین کا کہنا ہے کہ ہیسکو میرپور خاص کے محکمے نے بجلی چوروں کو بے مہار چھوڑ رکھا ہے۔ 6 مہینہ میں ادھر نہیں تھی، حیدرآباد تھی، جبھی بھی یہ ہمارے سے ظلم ہو رہا تھا۔ چوری شدہ یونٹس بل ادا کرنے والے صارفین پر ڈیڈکشن کی صورت میں تھوپ دیے جاتے ہیں، جس سے صارفین سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ 15,000 روپے میری تنخواہ ہے، یہ ڈکلیریشن 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا میرے پہ چڑھا دیا ہے انہوں نے۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہیسکو چوری کی سرپرستی کرنے کے بجائے صارفین کی مشکلات حل کرنے پر توجہ دے۔ محمد صدیق، آج نیوز میرپور خاص۔ جلال پور پیروالا میں آواز دو پروگرام کے تحت خواتین کے حقوق اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ مزید بتائیں گے مظفر ایاز طاہر۔ جلال پور پیروالا کے علاقہ بہادر پور، چک 83M اور دین پور میں آواز 2 پروگرام کے تحت خواتین کے حقوق، جنسی تشدد اور چائلڈ لیبر مسائل کے بارے آگاہی سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینارز میں آؤٹ ریچ آفیسر آواز 2 پروگرام عبداللہ ربانی اور اشرت فاطمہ نے آگاہی فراہم کی۔ اس موقع پر شہریوں خصوصاً خواتین کی کثیر تعداد سیمینار میں شرکت کی۔
साढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई इस्लामी शरीयत आई तो उन्हें खवातीन को उन्हें हकूक के बारे दसिया, उन्हें खवातीन को हकूक दिते गए। अज भी साढ़े बाज़ इलाके ऐसे हैं जितना कि खवातीन को हकूक नहीं दिते वेंदे पे। ये सेमिनार का जो प्रोग्राम है इसमें से औरतें अब काफ़ी बेहतरी आ चुकी है औरतों में और उनके हकूक मिल रहे हैं और मैं चाहती हूँ मज़ीद उनको और भी उनके हक में राइट्स मिले और ये ना जो कम उम्री में लड़कियों की शादी की जाती है ताकि उनको तालीम दिलाई जाए और उनको ये पता नहीं होता कि हमें आगे जाके क्या करना है। जब वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो अपना घर कैसे बसाएगी। आवाज 2 प्रोग्राम के तहत इन सेमिनार्स का इनकाद का मकसद खवातीन और बच्चों को इनके हकूक के बारे में आगाही फराहम करना है। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर याज ताहिर, आज न्यूज जलालपुर पीरवाला। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के ज़ेरे एहतमाम सुल्तान बाहू नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुआशरे में अमन के क़याम के लिए सूफिया की तालीमात पर रोशनी डाली गई। झंग से वहीद मलिक रिपोर्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शरीक स्कॉलर्स ने बड़े सगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू के अफकार और नजरियात पर रोशनी डालते हुए नौजवान नस्ल से बाहमी रवादारी, सबर, तहम्मुल और अखुवत समेत दीगर अमूज ज़ेरे बहस लाए गए। सूफी इज़्म बारे मुख्तलिफ सेशन किए गए। मरूफ मजहबी स्कॉलर दीवान ऑफ जूनागढ़ सुल्तान अहमद अली का कहना था कि सुल्तान बाहू कॉन्फ्रेंस से शुरा को अपनी रूहानी तामीर और तरबियत में मदद मिलेगी। दुनिया की नापायदारी है, फिक्र आखिरत है, अच्छे अखलाक हैं, इनके ऊपर बात हुई तो यूथ का बड़ा अच्छा रिस्पांस था। इंटरेक्टिव सेशंस हुए और झंग यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से ये थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही और उम्मीद है कि लोगों को इससे अपनी रूहानी जो तालीम है और तरबियत है और अपनी जो शख्सियत की रूहानी तामीर है उसमें काफी ये मदद करेगी। कॉन्फ्रेंस में शरीक तुलबा का कहना था कि ऐसी बहुत सी बातें जो इनके अमल में ना थी, इस कॉन्फ्रेंस से उन्हें सीखने का मौका मिला। सुल्तान बाहू कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं और हमें आज दिन बहुत कुछ सीखने को मिला। साहिबजादा मोहम्मद अहमद सुल्तान ने हमें बहुत कुछ इस्लाम के बारे में बताया है और हम मतलब कि हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन और नॉलेज में इजाफा हुआ है। हमारे मजीद ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, उससे ये कि हमें जो हमारे औलिया कराम है उनके बारे में हमारी जो इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा होगा। मीन के बहुत बातें ऐसी हैं जो कि हम नहीं जानते थे और आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों ने जानी। इस मौके पर कलाम सुल्तान बाहू भी पेश किया गया। इकराम की तालीमात पर अमल पैरा होकर मौजूदा दौर में दरपेश मसाइल को खत्म किया जा सकता है। वहीद मलिक, आज न्यूज झंग। तांदलियावाला में शुगर मिल अमले और काश्तकारों में तसादुम हुआ, जिसमें 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे उमर दराज से। जी उमर दराज बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो तांदलियावाला चिनार शुगर मिल में और काश्तकारों में पेश आया। तसादम के नतीजे में दर्जन से ज्यादा अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मी काश्तकारों में अजमत शाह, उबैद शाह, उमर, उस्मान, सजाद, हुसैन शामिल हैं। मोहम्मद यूसुफ, साबर हुसैन, उमर हयात, आसफ और अल्लाह रखा शामिल हैं। वाकया गन्ने के काश्तकारों का मिल के सामने ट्रालियां खाली ना करने पर एहतजाज के दौरान पेश आया। तसादम में जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग से 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। तांदलियावाला मिल अमला ने आतिशी असला और डंडों से हमला किया, मुतासरा काश्तकारों का ये कहना है। मिल अमला ने काश्तकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 2 काश्तकार जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता 3 रोज से ट्रालियां खड़ी हैं, लेकिन जानबूझकर खाली नहीं की जा रही हैं। तांदलियावाला मिल इंतजामिया से मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, मिल के अमला ने दावा बोल दिया। मुतासरा काश्तकारों का कहना है कि मिल इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले पुरअमन किसानों पर शदीद जो है तशद्दुद किया है। मुतासरा काश्तकारों ने आला हुकाम से अपील की है कि हमें इसका अजाला किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर दराज आपका। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर सीवरेज के पानी के बायस से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। सफर करने वाले लोग अजियत का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं जुनैद जावेद।
यूनिवर्सिटी रोड कराची से सफारी पार्क जाने वाली शाहरा पानी में डूब गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार, सभी अजियत में मुब्तला हैं। ट्रैफिक भी बहुत मुतासिर हो रहा है और ये आए दिन ये रहता ही है। अभी रोड बने में 2 महीने नहीं हुए और ये रोड का ये हाल हो गया दोबारा। पानी इसलिए जमा है कि ये अक्सर जमा होते रहता है और ये सीवरेज का ही पानी है और जुम्मे का दिन है। अब मुझे खुद नमाज पढ़ने जाना है, परेशानी मुझे हुई कि मैं दूसरे रोड से घूमकर इस साइड पे आ रहा हूँ। 3 माह कबल इस सड़क की अस्तरकारी करवाई गई थी, लेकिन सीवरेज के बदतरीन निजाम ने एक मरतबा फिर सड़क खराब कर दी। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर निजाम ठीक करे ताकि पानी का मसला यहाँ पर हल हो, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आने जाने में भी रास्ते में परेशानी होती है, गाड़ियों में जा नहीं पाती, आ नहीं पाती। यहाँ पे रोज का है कहानी है, ये सही होती नहीं है, 2 दिन सही होती है फिर हफ्ता खराब। बहुत परेशानी है लोगों को। यूनिवर्सिटी रोड मसरूफ तरीन शाहरा समझी जाती है। इलाका मकीनों ने सीवरेज सिस्टम दुरुस्त कराने का मुतालबा किया है। बूरेवाला में यूरिया खाद के बहरान पर किसानों का सबर जवाब दे गया। सैकड़ों किसानों ने एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मियां शाहिद सलीम। बूरेवाला में यूरिया खाद के मसनूई बहरान और बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ सैकड़ों किसान सड़कों पर निकल आए। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक जुल्फकार अवान की क़यादत में किसानों ने एहतजाजी रैली निकाली, जो कि मुख्तलिफ बाजारों से गुजरते ही वापडा ऑफिस के बाहर पहुंची, जहां एहतजाजी धरना भी दिया गया। किसानों ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे। किसान रहनुमाओं का कहना था कि यूरिया खाद की जखीरा अंदोजी के बायस खाद के मसनूई बहरान और आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। क्या आप लोग अपना बिल एफपीए, जीएसटी, क्वार्टर टैक्स, 9 किस्म का टैक्स है, क्या बिल अदा कर सकते हो? नहीं। ये मसनूई जो महंगाई की गई है, यूरिया डीएपी नहीं मिल रही किसानों को, तो कल को गंदम कहां से लोगे? यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी के बायस इस साल गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा है। किसानों का कहना था कि खाद की बाआसानी दस्तयाबी और बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को कम न किया गया तो जल्द ही मुल्क भर से किसान इस्लामाबाद में धरना देंगे। मियां शाहिद सलीम, आज न्यूज, बूरेवाला। अब आपको बताएं कि सिंध के शहर दादू में पहाड़ों से निकलने वाले गोंद से मजेदार हलवा तैयार किया जाता है। ये हलवा तैयार कैसे होता है, ये बताएंगे ताहिर बलोच। एक 134 साल कदीमी सौगात जो कि दादू की मशहूर सौगात बहुत ही लजीज और जायका खेज सौगात है, जिसे लोग बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। उगम हलवा जायका खेज क्यों ना हो, इसमें काजू, पिस्ता, बादाम और देसी घी जो डलता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं। हलवा पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। इस हलवे को लोग अपने दोस्त अहबाब को तोहफे के तौर पर पेश करते हैं और सर्दी की मौसम में ये बहुत लोग खाते हैं। दूर दूर से कराची, हैदराबाद, मैंने तो सिंध के काफी इधर लोग देखे हैं, लेकिन पंजाब से भी लोग आते हैं, अच्छा हलवा बनाते हैं। पूरी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। हमारे दोस्त भी हैं और कुछ फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि दादू से कोई चीज और भेजो ना भेजो, तुम हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे आप जरूर भेजो। इस हलवे को तैयार करने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगते हैं। हलवा ये 134 साल पुरानी ये सौगात है। ये सर्दियों में ज्यादातर बहुत खाते हैं लोग शौक से, ये सर्दियों की सौगात है। उगम हलवा सिर्फ खाने में जायका खेज नहीं, इसके और भी फवायद हैं। जोड़ों, पट्टों और कमर के दर्द समेत मुख्तलिफ अमराज के लिए मुफीद है और ये क़याम पाकिस्तान से पहले बनाया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में उगम हलवे की मांग में इजाफा हो जाता है और लोग ज्यादातर ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं। ताहिर बलोच, आज न्यूज, दादू। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो एसओपीज पे अमल होता था। शहबाज शरीफ साहब खुद आईजी से बात करते थे, ट्रैफिक पुलिस से बात करते थे, चीफ से, कि कितना काउंट हो गया, इससे ज्यादा गाड़ी नहीं आने देनी। मुझे बताएं, जब 1,67,000 गाड़ी चली गई और मौसम खराब हो गया तो 9 जनवरी को उनको होश आई कि आप रस्ते बंद कर दो। तो ये घनौना मजाक है और ये इस पर मिट्टी डालना चाहते हैं। इमरान नियाजी साहब सुन ले कान खोलकर, बुज़दार साहब सुन ले कान खोलकर कि हम आपको इस साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आज जो टॉक शोज हैं
उनका एजेंडा एक एंकर के हैसियत से मत मुरतब करें। एक बाप बनकर सोचे कि आज जिसकी बच्ची चली गई, जिसका बाप चला गया, सानिया मरी में इनकी गफलत की वजह से, इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, इस इशू को हाईलाइट करते रहें, क्योंकि क़यामत वाले दिन आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है। आज किसान पुकार उठा है, रुल गया है। इस नियाजी साहब ने चीनी के लिए लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, बुजुर्गों को, माओं बहनों बेटियों को जलील कर दिया एक एक किलो चीनी के लिए। आज उसी तरह किसान, चाहे वो बहावलपुर के गोट हैं, कोट अद्दू है, मुल्तान है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, सब रो रहे हैं। जो कीमत 2500 थी आज 10,500 की बोरी नहीं मिल रही, ब्लैक हो गई डीएपी। और नियाजी साहब फरमाते हैं कि डीएपी की पैदावार जरूरत से ज्यादा हुई है। मुझे बताओ इमरान नियाजी साहब, अगर पैदावार ज्यादा हुई तो आज लोग लाइनों में लेकर क्यों डीएपी का इंतजार कर रहे हैं? अगर पैदावार थी, आपसे पूछा जाता है महंगाई बहुत हो गई, आप कहते हैं महंगाई कम है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों सुन लो, आज महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का नंबर दुनिया में, रीजन की बात नहीं, दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तीसरा दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। आज 350 अरब का टीका अवाम को लगा दिया गया, स्टेट बैंक को आईएमएफ का गुलाम बना दिया गया। एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, एटमी कुवत है, उसको आज आईएमएफ का गुलाम बना दिया गया। ये वज़ीर आज़म था जो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और आईएमएफ से लोन नहीं लूंगा। आज फिर कहता है कि ये माफिया है। चीनी का बहरान आए, माफिया है। गंदम का बहरान आए, माफिया है। और अपना जो एक खाद का बहरान है, माफिया है। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर आज़म हाउस में वो बला बैठी है इर्द गिर्द आपके? नियाजी साहब, लोगों को ज्यादा और चकमे ना दो। 50 लाख घर का वादा, 1 करोड़ नौकरियों का वादा, लोगों के घर गिरा दिए, नजायज तजावुजात है, अपना बनी गाला का महल रेगुलाइज करा दिया और फिर रियासत मदीना की बात करते हो। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जाओ देखो, बनी गाला से नीचे उतर के देखो कि लोग आज 74 साल में जो लोगों की आज हालत है वो कभी ना थी। मुझे चीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जब मैं लोगों के दुखों को महसूस करता हूं तो मुझे चीखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, एहतजाज भी करना पड़ता है। लोगों की हाय सुनो। नए पाकिस्तान को तुमने अपने झूठों तले पुराने पाकिस्तान को भी दफन कर दिया। आज लोगों की आंखों में नाउमीदी है, गुस्सा है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। दूध बच्चों से दूर हो गया, दूध की कीमत आसमान से बातें कर रही है। दहशतगर्दी को ज़र्ब अज़म से हमने, अफवाज पाकिस्तान ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, सियासतदानों ने खत्म कर दिया। कराची की रौनकें बहाल हुई। तुमने सितंबर में एक मीटिंग की, अपना जो है वो नेशनल एक्शन प्लान की, सिर्फ एक मीटिंग की। और इधर एपेक्स कमेटी की बुजदार साहब ने मीटिंग कोई नहीं की। वो एक मीटिंग हुई, उसका एजेंडा जो था वो कोरोना था। जब पुलवामा का वाकया होता है, पार्लिमानी लीडर बैठते हैं, अस्करी क़यादत आती है और पाकिस्तान का मामला है, किसी की जात का मामला नहीं। इमरान ऐसा पतली गली से निकल जाते हैं, कहने को इस मुल्क के जाली वज़ीर आज़म है। आज 50 किलोमीटर दूर लोग फौत हो गए मरी में दारुल खिलाफे से। शहबाज शरीफ के बूटों के ऊपर तुम तंज करते हो, आपको तौफीक नहीं हुई कि आप चले जाते वहां पर खुद, और फिर ऊपर से आपके वफाकी वज़रा तमाशबीनी करते हैं। अपना फवाद चौधरी साहब का बयान सुना आपने 5 तारीख को कि जी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और फिर ट्वीट वापस लेना पड़ा। आज जब खाद का बहरान है, वो कहते हैं डॉलर जो है वो 200 तक चला जाएगा, मईशत का धरम तख्ता हो गया,
मईशत आईसीयू में है। और फिर आज भी इमरान नियाजी को 4 साल बाद भी शरीफ फैमिली की याद सताती है। और भाई इंतकाम हमसे लिया है, हमें जेलों में डाला है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो इंतकाम आपने पाकिस्तानी अवाम से लिया है नियाजी साहब, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह की अदालत में देना पड़ेगा, अवाम की अदालत में देना पड़ेगा आपको। इंशाअल्लाह आपको जाने नहीं देंगे, आपको पतली गली से निकलने नहीं देंगे, आपसे हिसाब लिया जाएगा। हमने तो अपना जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी सहे झूठे, यहां पर अदालती फैसले मौजूद हैं, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट मौजूद है जो आपके तमाम इल्जामात को झूठा साबित करती है। लेकिन एक रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने बताई है, उसमें आपने अकाउंट भी छुपाए हैं, उसमें आपने अपने टी बॉयज के नाम पे पैसे भी मंगवाए हैं। और आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो कनाडा और न्यूजीलैंड के अकाउंट तक अभी तक आपने रसाई नहीं दी है। 53 अकाउंट, उसका हिसाब ही नहीं दिया। और अभी ये 2009 से 2013 तक है। आप तो कहते थे ना कि ये अपना पनामा आया है तो वजीर आज़म इस्तीफा दे और जब सुरखरू हो जाएगा तो दोबारा कुर्सी पे बैठ जाए। तो क्या न्याय साहब आज पाकिस्तान का कानून बदल गया है? क्या रियासत मदीना में 2 कानून हैं कि आज इमरान नियाजी स्क्रूटनी कमेटी ने सवाल उठा दिए, आप सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो गए? आपको नहीं चाहिए कि आप फौरी इंसाफ की बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम देखना चाहती है, इस्तीफा दें, अपने आप को पेश करें। अगर आप अपना जो है वो साफ शफाफ होंगे तो दोबारा आके बैठ जाएं। तो कौन सा ये दोहरा मयार है नियाजी साहब? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब हिसाब दें, तोशा खाने का मामला आए तो आप जवाब ना दें। 7 साल आप फॉरेन फंडिंग केस में आप अपना जो है वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते रहे। ये कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं? ये इंसाफ सिर्फ बनी दला में बिकता है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानना चाहती है कि ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का हिसाब कौन देगा। 150 पेशियां भुगत चुका हूं मैं और भी भुगतूंगा, लेकिन नियाजी साहब आपको फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना होगा। और मैं ये कह दूं आपको आज अवाम को भी, मीडिया को भी, कि वक्त आने वाला है, हम इंशाल्लाह इस ऐवान में भी और नेशनल असेंबली में भी हर वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे कि ये जो अजाब पीटीआई का मुसल्लत है इस कौम पे, जिसने लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन ली, किसान से उसका हक छीन लिया, पाकिस्तानी अवाम को रोल दिया, झूठे वादे किए, आपका हिसाब होगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम इमरान नियाज़ी से जल्द छुटकारा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि साने मरी पर हर पाकिस्तानी अफसरदा है। जब लोग ठठर रहे थे तो हेलीकॉप्टर कहां था? इन जैसे बेहिस हुक्मरान पहले हमने कभी नहीं देखे। और अब यहां पर लेंगे एक ब्रेक, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको अहम खबर दें कि लाहौर धमाके में जांबाहक अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है। नमाज जनाजा के बाद न्यू अनारकली का रास्ता भी खोल दिया गया है। अनारकली में ट्रैफिक और शहरियों की आमदोरफ्त मामूल पर आ गई है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आगाह कीजिएगा। जी अतीक, बताइएगा, लाहौर धमाके में जांबाहक अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि नमाज जनाजा के बाद न्यू अनारकली का रास्ता भी खोल दिया गया है। अनारकली में ट्रैफिक और शहरियों की आमदोरफ्त मामूल पर आ चुकी है। अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर बम धमाके में शहीद जांबाग होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा जो है वो यहाँ पर अदा कर दी गई है। गायबाना नमाज जनाजा में जो है वो मार्केट के जो मेंबर हैं उन समेत शहरों की बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत की थी। और नमाज जनाजा के बाद जो है वो न्यू अनारकली के रास्ते को जो है वो आम शहरों के लिए खोल दिया गया है। और यहाँ पर ट्रैफिक और शहरों की आमदोरफ्त जो है वो बिल्कुल मामूल पर आ चुकी है।
यहाँ पर तमाम दुकानें जो है वो मार्केट भी खुल चुकी हुई है और शहरी जो है वो खरीदो फरोख्त के हवाले से भी यहाँ आकर रुख कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो जाय वकूआ का जो जगह है उसको जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है और इसके करीब 3 जो दुकानें, चंद दुकानें जो है वो बंद है। अलबत्ता जितनी भी दुकानें मार्केट में मौजूद है वो सारी दुकानें जो है वो खुल चुकी हैं और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में शहरी जो है वो आना जाना शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। तूफानी हवाओं ने कराची में निज़ाम जिंदगी दरहम भरम कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अपडेट लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान बताइएगा, तेज रफ्तार हवाओं के बाइस अब तक कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, शहर में तेज हवा चलने के बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में हादसा और वाकयात रोनुमा हुए, जिसमें अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 4 हो चुकी है। और रंगी टाउन में 5 साल बच्चा शदीद जख्मी हुआ था दीवार गिरने के नतीजे में, जिस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। फरमान के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। दौरान इलाज ये भी दम तोड़ चुका है। इससे कबल नॉर्थ नाजाबाद में दीवार गिरने से रतन नामी शख्स जाँ बहक हुआ। शेरशाह गुलबाई के करीब भी जो है वो पेश आने वाले हादसे के नतीजे में एक मजदूर था, वो भी दीवार गिरने से जाँ बहक हुआ, जिसकी शनाख्त फकीर हुसैन के नाम से हुई। गुलशन मेमार में दीवार गिरने से एक शहरी जान से गया, जबकि बल्दिया स्पार्को रोड नादन बाईपास पर जो है वो मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 अफराद जख्मी हुए। और रंगी टाउन में भी जो है वो दीवार गिरी। इसके अलावा मेमार के करीब दीवार गिरने से 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए। तमाम जख्मी होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर अब तक 6 सामने आई है, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 4 हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया फैजान आपका। कस्टम्स कोयटा ने बड़ी तादाद में यूरिया खाद की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में 12 ट्रकों से सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस तरह वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कोयटा कस्टम के अमले ने दरख्शा नाके पर दौरान चेकिंग 12 ट्रकों को पकड़कर उनकी तलाशी ली गई, जिनमें से 8 ट्रकों से तकरीबन 20,000 से जायद बोरिया जो यूरिया खाद की थी उसे बरामद कर लिया। चूंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर पाबंदी लगी हुई है, ये एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ले जाना चाह रहे थे, जिस पर कस्टम ने कार्रवाई करते हुए इन बोरियों को कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी जानिब 8 ट्रकों को भी अपने कब्जे में लेकर उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें सिलसिले में अपडेट करने के लिए। तो सोहेल हमें बता रहे थे कि कस्टम्स कोयटा ने बड़ी तादाद में यूरिया खाद की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। कार्रवाई में 12 ट्रकों से सैकड़ों बोरियां भी बरामद कर ली गई हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क बाटा पाकिस्तान लिमिटेड ने मारूफ शू ब्रांड हैश पपीज के साथ पार्टनरशिप की है। बाटा पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इमरान मलिक और हश पपीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कासिम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत कस्टमर्स अब बाटा स्टोर्स पर इस ब्रांड को खरीद सकेंगे। हश पपीज ब्रांड के जूते इब्तदाई तौर पर बड़े शहरों में बाटा के 50 स्टोर्स पर दस्तयाब होंगे। लाड़काना की सर शाह नवाज भुट्टो लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस के मुनफरिद प्रोजेक्ट्स की नुमाइश हुई, जिसमें तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सलामत अबड़ो मजीद बता रहे हैं। लाड़काना की सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी में तलबा के बनाए गए साइंसी नमूनों की नुमाइश हुई, जिसमें 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। हमने FIPB प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है फेस मास्क रिकॉग्नाइजेशन, और उसमें हमने काम किया है, डेटा सेट बनाए हैं, उसको ट्रेनिंग करवाई है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें क्या होगा कि हम एक AI स्टिक प्रेजेंट कर रहे हैं, जो ब्लाइंड्स को हम स्टिक देंगे, उसका नाम है स्मार्ट AI स्टिक। मुनफरद प्रोजेक्ट्स में नाबीना अफराद की रहनुमाई के लिए स्मार्ट स्टिक, मास्क पहने अशखास, असले की शाख्त, एयरलाइंस बुकिंग, अस्पताल मैनेजमेंट समेत दीगर सॉफ्टवेयर शामिल थे। शुरा ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। program actually is a software and hardware exhibition conducted by Zabis Larkana. तलबा की रहनुमाई करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा अबड़ो का कहना था कि नुमाइश को पब्लिक करने का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है। दुनियापुर पुलिस ने चोरी और डकैती में मुलव्वस शोकी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे जाहिद महमूद। थाना सदर पुलिस दुनियापुर कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार किया है, जिनसे माल मसरूका बरामद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ SDPO सर्कल दुनियापुर मलक इजाज बसवाल मौजूद है। क्योंकि लोग घरों में अंदर सोते हैं और माल मवेशी जो है वो उनके खानों में खड़े होते हैं अकेले, तो ये वारदात आम हो जाती है और एक गैंग बड़ा डेंजरस
शौकत और शौकी गैंग, जो 5 अपनी गैंग है, उसको का काफी तादाद में जो है वो हम बरामद करेंगे। मैं बताया कि ऐसा जो सदर दुनियापुर की बड़ी कार्रवाई है, शौकत और शौकी गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लाखों रुपए मालियत की जो है मवेशी बरामद किए गए हैं। SDPO सर्कल पुराजम है, इनका कहना है कि हमारी टीम जो है जान फशानी से काम कर रही है और अवाम के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वली तरजीह है, जिसको अमली तौर पर जामे पहनाएंगे। जी नौशहरा में निजी तंजीम की जानिब से DHO ऑफिस में 2 रोजा फ्री आई कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आंखों की बीमारियों का इलाज और मौके पर ऑपरेशन भी किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत सदक़ाए जारिया है। ऐसे इक़दामात को हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल सपोर्ट करेगी। कोहाट में सब्जी और फल समेत हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त तिजारती मरकज में आज न्यूज के नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद डायरेक्टली फ्रूट, सब्जी और अनाज की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें कि पेट्रोल की जो साबिक़ा कीमत थी, उस वक्त लहसुन जो है वो फी किलो 320 रुपए था और अब हो गया है 430 रुपए। इसी तरीके से साथ साथ जो अदरक है, वो जो साबिक़ा कीमत थी वो थी 280 रुपए, अब वो पहुंच गई है 450 तक। साथ ही साथ अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज की जो कीमत थी पेट्रोल महंगा होने से पहले जो कीमत थी वो थी 40 रुपए, अब 60 रुपए फी किलो हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद डायरेक्टली जो है वो असर पड़ा है आम आदमी पर। इस वक्त सूबाई हुकूमत से खुसूस तौर पर आम आदमी का ये मुतालबा है, कोहाट की अवाम का ये मुतालबा है कि खुदारा इनकी कीमतों में कमी लाई जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए, ताकि हम जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सूबे के दूसरे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद नौजवानों को गवर्नमेंट जॉब पर इन्हिसार के बजाय प्राइवेट और आजादाना रोजगार की तरफ माइल करना है। IT डिपार्टमेंट इस्लामाबाद की एक्सपर्ट टीम ने इंजीनियरिंग जामिया खुजदार में पार्क के लिए मुख्तस इमारत का मुआयना भी किया। सांगड़ की यूनियन काउंसिल मियान में कायम गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल की इमारत खस्ता हाल हो गई है। तालिबात ने स्कूल की मरम्मत का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सांगड़ के करीब म्यान में मौजूद हूं और म्यान के उस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सरवरी मौला और कम्युनिटी मॉडल मर्च वाले स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर इस स्कूल की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। ना ही स्कूल की चार दीवारी है, ना ही यहां पर स्कूल में पीने का साफ पानी है तालबात के लिए। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में कोई सहूलत नहीं है। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी कम्युनिटी मॉडल स्कूल है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमारा स्कूल बनाकर दिया जाए। पाकिस्तान का आइन कहता है कि तालीम के शोबों में तमाम तर सहूलियात यहाँ देनी है, लेकिन इस स्कूल में जो मियान में ये स्कूल है वहाँ पर कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। यहाँ पर इनको फौरी तौर पर सहूलियात देकर यहाँ के बच्चों की जो खानेवाल में कपास की पैदावार बढ़ाने से मुताल्लिक महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों के लिए आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अशरफ गादी से। जी बिल्कुल, मुल्क में कपास की पैदावार में इजाफे के लिए खानेवाल में एक सेमिनार का इनकाद किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ कर्नल आबिद महमूद खग्गा ज़राई टास्क फोर्स के जनूबी पंजाब से चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है कि कपास की में इजाफे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कपास के इजाफे के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम बीज की क्वालिटी को बेहतर करें, उसके बाद किसानों को उस बारे में आगाही दें। पाकिस्तान में कपास तबाही के रुख जा चुकी है और अगर इस साल भी अल्लाह ताला की मेहरबानी ना होती के मौसम में तो पाकिस्तान में इस साल कपास नहीं लगनी थी। असल मसला ये है कि हमने उसके बीज से उसको ठीक करना है, क्योंकि हमने पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में कपास के बीज को तबाह किया है। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि सर्टिफाइड बीज और क्वालिटी वाला बीज इस्तेमाल करके ही कपास की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। जी सेवन शरीफ में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सख्त इक़दामात किए गए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे कुर्बान अली भट्टी से।
तहसील 7 के अंदर ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर है उसके हवाले से जो 7 के अंदर इंतजामिया की जानिब से जो है बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त में साहब डायरेक्टर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। जो भी पेशेंट और विजिटर अस्पताल में आता है पहले हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं फॉर वैक्सीनेशन। जिसको वैक्सीनेशन कार्ड होता है उसको हम फ्री उसको अलो करते हैं, जाके जहीम जाए डॉक्टर को दिखा। नो विजिटर इज अलाउड विदाउट वैक्सीनेशन। जी, तो आपने सुना कि 7 की दरगाह कलंदर लाल शहबाज की मजार पर 2 मराकज और 7 की सैयद अब्दुल्ला शाह अस्पताल में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जो है एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा रही हैं। जी, ननकाना साहब में एक शाम रेडी बानो के नाम से इखलाकी, फिक्री और तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे चौधरी अफजल हक। ननकाना साहब में आजादी ग्रुप बार बटन की जानब से सजाई जाने वाली एक शाम रेहड़ी बानों के नाम नशिस्त में पाकिस्तान के मरूफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अली सकलैन हैदर समेत शहर भर से फल, सब्जी और दीगर अशिया फरोख्त करने वाले सैकड़ों रेहड़ी बानों ने शिरकत की। रेहड़ी बान लोगों को रहनुमाई दी गई कि नाप तोल में कमी न करें, जायज मुनाफा और अच्छी पब्लिक डीलिंग करके बेहतर मेयारी जिंदगी गुजारें और आगे निकलते हुए हालात का कैसे मुकाबला करें। आज की शाम जो कि हमने रेहड़ी बानों के नाम की थी, इसमें ये तबका, ये हमारा मजदूर तबका, मेहनत कश तबका, ये सबक लेके जाएगा कि काश हम भी पढ़े लिखे होते, आज हम भी स्टेज पे बोलने के काबिल होते। तो काश का लफ्ज तो मैंने इनके लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें जो है वो इसी प्लेटफार्म से कुछ ना कुछ हासिल करके आगे मुस्तकबिल में वो कोई ना कोई काम करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में रेहड़ी बानों के एजाज में पुरतकल्लुफ दोहराने का भी एहतमाम किया गया। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएं कि वैसे तो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की रोटियां बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आप बन्नू की ये रोटी देख लें तो आप इसे रोटियों का सरदार मानने पर मजबूर हो जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उमान। यह है बन्नू की रिवायती रोटी पोस्ता, जो खुसूसन शादियों के लिए तैयार की जाती है, जिसका अपने साइज के हवाले से कोई सानी नहीं। बन्नू की किसी शादी में ये रोटी ना हो तो वो शादी ही नहीं कहलाती। पोस्ता सिर्फ साइज है नहीं बल्कि जायका में भी मुनफरिद होती है। रोटी पक रही है, ये बन्नू की स्पेशल रोटी है और हमारी जो शादियां होती है उसमें ये स्पेशल तरीके से पकाई जाती है। बन्नू की शादियों की दावत मिलते ही दूसरे शहरों से भी लोग दौड़े चले आते हैं और बन्नू का ये खुसूसी पोस्ता हाथ से जाने नहीं देते। मदनान है और मैं स्पेशली पेशावर से इस बन्नू के रिवायती खाने के लिए आया हूँ। पोस्ता की एक रोटी 3.5 किलो आटे से बनाई जाती है, जो 8 अफराद के लिए काफी होती है, जिसे लोग बन्नू की रिवायती डिश पेंडा के साथ खाकर लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन नसरुल्लाह खान के साथ मोहम्मद नोमान, आज न्यूज, बन्नू। आज 5 में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ